সরি বন্ধুরা, আজকে আসতে একটু দেরি হলো। এখানে একটু কাজের চাপ আছে আর ক্লায়েন্টও ছিল। বাট অ্যাজ আই প্রমিসড ইউ অল যে আমি আজকে তোমাদের তারার গল্প শোনাবো, তো আসতেই হতো। একটু দেরি হলো, 10 মিনিট দেরি হয়ে গেল, সরি। বাট তোমরা तातरी तातरी चले आशो जाते गल्पटा शुरू करा जाए। हेलो फ्रेंड्स, थोड़ा सा लेट हूँ बट यहाँ पे थोड़ा क्लाइंट्स थे और काम का प्रेशर भी है बिकॉज यू नो दिस इज पूजा टाइम। बट चूंकि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं आप लोगों को आज तारा की कहानी सुनाऊंगी, जो कि दशम महाविद्या की सेकंड महाविद्या है। तो मुझे भी एक बेचैनी सी हो रही थी दोस्तों से मिलने की, और लग रहा था कि कब तक पहुंचूं और कब तक आप लोगों को ये कहानी सुनाऊं। तो बस आप लोग सब जल्दी जल्दी एकत्रित हो जाइए सो दैट आई कैन स्टार्ट दी स्टोरी। एंड ये एक बहुत ही मजेदार और एक बहुत दिलचस्प कहानी है, क्योंकि यहाँ पे माँ का एक बहुत ही भिन्न रूप हम लोगों को देखने को मिलेगा। और जहां तक बंगाल का सवाल है, तो बंगाल के लोगों के लिए माँ तारा एक अलग ही मायने रखती हैं, और उनका जो पीठ है तारा पीठ, वहां पे उनके मतलब लाखों भक्त हर दिन एकत्रित होते हैं उनकी आराधना के लिए, उनकी पूजा के लिए। तो कुछ अनजानी सी तत्व और कुछ बहुत ही दिलचस्प तत्व लेके आज का ये एपिसोड है, जो कि द्वितीय पर्व है ये दशम महाविद्या का, और वो है तारा। तो बस आप लोग सब जल्दी जल्दी आ जाइए, সবাই তাড়াতাড়ি চলে আসো, কারণ আজকে আমি শোনাবো তারার গল্প। আর তারা আমাদের হিন্দু ধর্মে যতটা ইনফ্লুয়েন্স রাখে ততটাই জৈন কিংবা বুদ্ধিস্ট ধর্মেও রাখে। জৈন ধর্মটার যে তারা পাঠটা, সেটা আমি এখনো সেইভাবে ডিসকভার করে উঠতে পারিনি, তাই জন্য আজকে বলবো না। হ্যাঁ, তবে যেটা আমাদের বৌদ্ধ মত আছে বা যেটা আমাদের হিন্দু মত আছে, এবং হিন্দু মতের মধ্যেও যেখানে যেখানে অন্য অন্য ধরনের আরো কিছু বিভাজন আছে, সেখানে তারার যে ইনফ্লুয়েন্স, তারার যে গল্প বা তারার যে গাথা, সেটা কিন্তু বেশ ইন্টারেস্টিং। তার কারণ তারা এমনই একটা ক্যারেক্টার যেখান থেকে, যেটা কিন্তু আরেকটি ঊর্জার স্রোত, ঠিক এনার্জির স্রোত, এবং সেও কিন্তু এই ভূমণ্ডলে ছিল এবং আছে, থাকবে। তার কারণ তার উৎপত্তিটা মনে করা হয় যে যখন সৃষ্টির বহু আগে, মানে কমন এরাতে। তো আমরা যে দুজন দেবীর কথা শুনলাম, গতকাল আমরা শুনেছি কালীর বিষয়ে এবং আজকে আমরা শুনবো তারার বিষয়ে। তো এই দুজনেই কিন্তু সৃষ্টির বহু আগে থেকে, মানে প্রলয়ের বহু আগে থেকে এরা আছে। এবং কালকে আমি একটা জিনিস আপনাদের সময়ের অভাবে বলে উঠতে পারিনি, তো সেটা আজকে বলে দিই। সেটা হচ্ছে কালীর বীজ মন্ত্র। মানে আমরা একটা মন্ত্র দিয়ে মাকে পূজা দিই, আর আরেকটি হচ্ছে বীজ মন্ত্র। বীজ মন্ত্রটা জেনারেলি তন্ত্রে লাগে। তো বীজ মন্ত্রের যেটা মূল জিনিস, সেটা হচ্ছে আপনি যদি ওই পার্টিকুলার বীজ মন্ত্রটাকে দিনে 108 বার বলেন, সেই গুণগুলো আপনার মধ্যেও কিন্তু চলে আসবে। মায়ের সেই গুণগুলো কিন্তু আপনার মধ্যে চলে আসবে। এটা প্রত্যেকটা দেবী বা দেবতার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যে যদি আমরা তাদের বীজ মন্ত্রগুলোকে বলতে থাকি, তাদের অনেক গুণ আমাদের মধ্যে চলে আসবে, বা তাদের অনেক ভালো জিনিস আমাদের মধ্যে বিরাজমান হবে। যেরকম যদি আমরা কালীর বীজ মন্ত্র ধরি, তাহলে ওম ক্রিং কালিকায় নমো নমঃ, ওম ক্রিং কালিকায় নমো নমঃ, ওম ক্রিং কালিকায় নমো নমঃ। এই মন্ত্রটা বলে মায়ের পায়ে যদি 108টা জবা ফুল আপনি দান করেন, তার কিন্তু একটা এই অ্যাকশনটার একটা রিয়াকশন ডেফিনেটলি পাবেন। তো আজ থেকে যাদের যাদের মনে হচ্ছে যারা যে দেবতা বা দেবীর ভক্ত,
তারা কিন্তু আমি যখন যখন এই ধরনের এপিসোডস করব তাদের বীজ মন্ত্রগুলো দিয়ে দেব এবং সেগুলোকে ফলো করে আপনারা যদি সেটা কন্টিনিউয়াসলি বলেন সেটা কিন্তু আপনাদের জীবনে একটা উপকার অবশ্যই ঘটাবে। এবং এই কালীর বীজ মন্ত্রের কি উপকার, আপনার সমস্ত শত্রু নাশ হবে। কালী বীজ মন্ত্রে যে কোনো শত্রুর নাশ হয়। তো সেটা কিভাবে, তার মানে কি তাকে খড়গ দিয়ে মা এসে তার মানে মস্তক ছিদ্র করবে তা নয়, কিন্তু যখনই আপনার সামনে আপনার শত্রুপক্ষ এসে বসবে, আপনার কথাবার্তায়, আপনার বাচন ভঙ্গিতে, আপনার চলাফেরায় সেই শত্রুর যে রিপু ভাব, সেই রিপু ভাবটা নষ্ট হবে। তো ঠিক সেরকমই আজকের গল্প তারাকে নিয়ে আমরা প্রচুর কথা বলবো, কিন্তু तार आगे मैंने मंत्र अभी जो आप लोगों को बताया, चूंकि मैं बांग्ला में बोलते हुए मैंने मंत्र का उच्चारण किया था, बट मंत्र संस्कृत में ही था। ओम क्रीं कालिकाय नमो नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमो नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमो नमः। ये एक ऐसा बीज मंत्र है जिससे आपके शत्रुओं का विनाश होता है। तो जिन लोगों को लगता है कि मेरे काफी शत्रु हैं, वो तो इस मंत्र का जाप शुरू कर दे, और इससे क्या होगा कि आपके इर्द गिर्द कोई शत्रु बचेगा ही नहीं, सब आपके मित्र बन जाएंगे और ढेर सारा प्यार आपको मिलेगा। तो इस तरह से भी हम लोग जीत सकते हैं लोगों को। और तंत्र एक ऐसी विद्या है, तंत्र एक ऐसी चीज है जिससे आप अगर चाहें तो इंसान का बहुत कुछ भला कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों को सुनने में आता है बंगाल इज अ लैंड ऑफ ब्लैक मैजिक, बंगाल में बहुत ब्लैक मैजिक होता है ये वो, बट ये जो तंत्र है इससे आप लोगों की अगर भलाई के लिए यूज करेंगे, लोगों की अच्छाई के लिए यूज करेंगे, तो देखिएगा उससे आपको भी कुछ अच्छा फल मिलेगा। जब हम कोई भी बुरा काम करते हैं उसका फल बुरा होता है। तो तंत्र को भी आप लोग पॉजिटिव में लेना चालू करें। तंत्र का जब आविष्कार हुआ था, या तंत्र की जो साधनाएं पहले जमाने में हुआ करती थी वो लोगों की भलाई के लिए हुआ करती थी। तो आज भी अगर इंसान किसी और की भला के लिए किसी भी तंत्र का इस्तेमाल करता है तो उसका फल भला ही होगा। अब आते हैं तारा में। आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर जाइए, क्योंकि जितनी लेट होगी आप लोगों को ज्वाइन करने में, मुझे भी कहानी स्टार्ट करने में उतना ही देर लगेगा। तो जैसे जैसे आप लोग ज्वाइन करते जाओगे वैसे वैसे मैं आप लोगों को कहानी सुनाती जाऊंगी। खैर आप लोग इसके बाद भी इसका रिकैप देख सकते हो, लेकिन अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो आपको क्वेश्चन आंसर सेशन में भी मजा आएगा, क्योंकि आप लोगों का अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, अगर कुछ आप लोगों को जानना होता है तो आप लोग पूछ पाओगे। तो चलते हैं तारा की कहानी में और तारा के बारे में जानते हैं। दशम महाविद्या की ये सेकंड महाविद्या या सेकंड पावर है जिसे हम तारा कहते हैं, और तारा सूर्य की अधिष्ठात्री हैं। मतलब सूर्य देवता स्वयं तारा की पूजा करते हैं। तो আমরা যখন তারার কথা বলি তখন তারা এমনই একজন নারী যার পুজো কিন্তু স্বয়ং সূর্যদেব করে। আমরা জানি সূর্যের কি প্রতাপ, মানে যে কোনো মানুষকে ঝলসে দিতে পারে, যে কোনো স্থানকে ঝলসে দিতে পারে, সেই সূর্য কিন্তু কার উপাসক? তারার উপাসক। তো তারা তার মানে তার থেকেও 10 টাইমস, 20 টাইমস, 40 টাইমস, ইনফিনিটি টাইমস বেশি পাওয়ারফুল বলেই কিন্তু সূর্য তাকে পূজা করে, আর নিজের যে প্রতাপ সেটা তারা থেকে গ্রহণ করে। আমি যেটা একটু আগেই বললাম, যে কোনো ভালো জিনিস বা যে কোনো মন্ত্র যদি আমরা আমার আশেপাশের মানুষের ভালোর জন্য ইউজ করি, সেইটার প্রতাপ আরো বাড়ে। তো সূর্য নিজের প্রতাপ দিয়ে যেরকম ঝলসে দিতে পারে, সেরকম তার প্রতাপ দিয়ে কিন্তু এই সারা পৃথিবী চলছে। সূর্যের আলো না থাকলে কিন্তু আমরা আলোকিত হই না, আমাদের দিন হয় না। তো সেই যে মানুষকে আনন্দ দেওয়ার আলো, সেটা কিন্তু সূর্যের আলো, এবং সেও কিন্তু মা তারার কাছে সেই আলোর স্রোতটাকে খুঁজে নেয় তার পূজার মাধ্যমে। সেই জন্য মা তারা।
থ্যাঙ্কস স্বপন ফর জয়নিং। ভালো লাগে যে তোরা আসিস, আমার গল্প শুনিস এবং গল্প শোনার আনন্দটা উপভোগ করিস। থ্যাঙ্কস প্রেবান্ত। এবার চলে আসছি মায়ের বরণের উপরে, মানে মায়ের গায়ের কালার। তো মায়ের গায়ের কালারটা কিন্তু ব্লু, নীল রঙের মা। হ্যাঁ, মানে মায়ের যে বর্ণনা আমরা পাই আমাদের চণ্ডীতে, সেখানে মায়ের গায়ের রং কিন্তু নীল, অ্যান্ড দেখতে অনেকটা কালীর মতন হলেও অনেক কিছু ডিফারেন্স আছে। এক ঝলকে দেখলে মনে হবে কালী, কিন্তু সে কালী নয়, সে তারা। কিভাবে চিনবেন? প্রথম, তার স্থূল শরীর। কালীর শরীর চিপচিপে আর তারার শরীর কিন্তু স্থূল। তার কিন্তু একটা ভুঁড়ি বেরিয়ে আছে এবং সে বাঘছাল পরে আর গলায় মুন্ডমালা। আপনারা এবার বলবেন যে কালীরও তো মুন্ডমালা। না, কালীর গলায় যে মালাটা আছে সেখানে মুন্ডগুলো সব জ্যান্ত, মানে সদ্য কাটা মুন্ডু। ঠিক আছে, সদ্য কাটা, তার থেকে রক্ত পড়ছে। আর তারার গলায় যেটা, সেটা কিন্তু একদম স্কাল। হ্যাঁ, তো সেই মুন্ডমালা, এবং তার মুন্ডমালাটা বেশ লম্বা, তার ভুঁড়ির নিচে অব্দি চলে যাচ্ছে, এবং 108টা স্কাল ওখানে এরকম গলার মধ্যে পড়ে উনি আছেন। এবং ওনার হাতে কিন্তু খড়গ রয়েছে, একদিকে চামড় রয়েছে। হ্যাঁ, খড়গ, চামড় অভয় দান করছেন, আর আরেক হাতে পদ্ম। তো এখানে ডিফারেন্সটা পাওয়া গেল যে तारा कालीर থেকে কিভাবে আলাদা। तो जब हम तारा की बात करते हैं तो तारा के वर्ण के बारे में बात करते हैं, तो उनका रंग है नीला। तो उनका ये जो नीला रंग है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, बट पहले बता दूं कि उनका वर्ण है नीला, और उनका जो अस्त्र है, शस्त्र है, और उनका जो साज सज्जा है, उन्होंने बाघ छाल पहना हुआ है, और ऊपर उनका बॉडी पूरा न्यूड है, और उन्होंने एक मुंड माला पहना है, स्कल्स की माला पहनी है। काली स्कल्स नहीं पहनती हैं। काली का जो मुंड माला है वो एकदम फ्रेश दानवों का जो मुंड होता है वो उन्होंने पहना हुआ है, और उनके एक हाथ में एक मुंड पकड़ा हुआ है। लेकिन इनके हाथ में कोई भी मुंड पकड़ा हुआ नहीं है। इनके हाथ में खड़ग है, इनके हाथ में एक चामड़ है, और इनके हाथ में एक लोटस है, और अभय दान करते हुए एक हाथ है। तो ये है इनकी सजावट, और इनका खड्ग है दाहिनी भुजा में। दाहिनी भुजा से इन्होंने खड्ग को पकड़ रखा है, बाएं भुजा में चामड़ है, ऊपर वाले दोनों हाथ हो गए। अब नीचे वाले जो हाथ हैं, नीचे वाले हाथ में दाहिनी भुजा से ही वो अभय दान कर रही हैं, और बाएं भुजा में उन्होंने एक कमल का फूल पकड़ रखा है। तो ये है तारा की वर्णना। और जब हम तारा के बारे में जानते हैं तो हमको ये भी पता चलता है कि वो शिव की घरनी है, बट उनका एक और अस्तित्व है। कुछ लोगों का मानना है कि वो बृहस्पति की घरनी है, और वो बृहस्पति की बीवी थी, और उनसे और बृहस्पति से एक संतान था जिसका नाम बुध था। और ये कहां से मिलता है हमको? ये मिलता है स्कंद पुराण के 7वें चैप्टर में। তো আমরা যখন তারা সম্বন্ধে পড়ছি তখন আমরা জানতে পারছি দেবী পুরাণে কিন্তু বলছে যে উনি শিবের ঘরণী, কিন্তু যখন স্কন্দ পুরাণের 7 নম্বর চ্যাপ্টার পড়ছি তখন জানতে পারছি যে উনি কিন্তু বৃহস্পতির ঘরণী, এবং ওনাদের দুজনের একটি সন্তান আছে যার নাম বুধ, মানে মার্কুরি, আর বৃহস্পতি মানে জুপিটার, মানে দেবতাদের গুরু। এবার চলে আসছি ওনার নাম। ওনার নাম মানে তারা একটি নাম, যেরকম আমাদের, আমি কালকেই বলেছি প্রত্যেকেরই অনেকগুলো নাম থাকে, সেরকম তারারও 3টে নাম আছে। একটা হচ্ছে একজাতা, মানে যা
মানে যার যাকে দেখলেই বুঝতে পারবে যে তার কিন্তু দৃষ্টি বা তার লক্ষ্য কিন্তু ভীষণভাবে বলিষ্ঠ। আর একটা হচ্ছে উগ্রতারা। উগ্রতারা কারণ উনি যখন রেগে যাচ্ছেন তখন উনি উগ্রতারা। এবং 3 নম্বর হচ্ছে নীল সরস্বতী। নীল সরস্বতী, এবং এই নীল সরস্বতীর বিষয়ে যখন আমরা বলছি নীল সরস্বতী কেন উনি, সেটা আমি আপনাদের একটু পরে জানাচ্ছি। আর আমরা যখন এই তারার বিষয়ে পড়ি, তারার অনেক তান্ত্রিক গুণ আছে, সেটার বিষয়েও জানতে পারি। তারার যেটা মূল বিষয় সেটা হচ্ছে আমরা এটা রুদ্রমালা থেকে বা যখন আমরা পুরাণের যে রুদ্রমালা সেখানে যখন পড়ছি তখন জানতে পারছি বশিষ্ঠ কিন্তু তারার উপাসক ছিলেন, ঋষি বশিষ্ঠ। হ্যাঁ, তো কিন্তু ঋষি বশিষ্ঠ কোনোদিনই তারাকে সন্তুষ্ট করে উঠতে পারেননি। উনি উপাসক ছিলেন ঠিক কথাই, উনি প্রচুর ভাবে এই ডেমনিক গডের পুজো করেছিলেন, কারণ ওনার উৎপত্তিও কিন্তু এই তারার উৎপত্তি বললাম না সৃষ্টির বহু আগে। সৃষ্টির বহু আগে বলতে কমন এরা, আর কমন এরা বলতে যখন আমাদের দেশে ভারত ভূমিতে তখনও আর্যরা এসে পৌঁছয়নি, সেটাকে কমন এরা ধরা হয়। তার কারণ সেই সময় শুধু কয়েকটি সিভিলাইজেশন ছিল। তো সেই কমন এরাতে এই তারার আবির্ভাব, এবং একেও কিন্তু দস্যুদের অধিষ্ঠাত্রী মানা হয়। দস্যুদের অধিষ্ঠাত্রী মানে এরা কিন্তু ওই দ্রাবিডের যেহেতু বংশধর, মানে দ্রাবিডকালীন দেবী, বংশধর বলছি দ্রাবিডকালীন দেবী, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ওনাকে ওই দস্যুদেরই দেবী মানা হয়। এবং ওনার যে ওনার অরিজিনটা মানা হয় হিমালয়েতে। যেহেতু উনি দ্রাবিড, সেই সময় তো দ্রাবিডরা উপরের দিকেই ছিল, নর্দার্ন ইয়েতেই ছিল, পাতসেই ছিল, তো ওনার অরিজিনটা মানা হয় হিমালয়ে। তো এই যে ওনার যে অরিজিন হিমালয়, সেটা কোথায় মূলত মানা হচ্ছে যে হিমালয়ান যে ইন্ডিয়ান হিমালয়ান বেল্ট আছে সেখান থেকে আরেকটু ওপরে তিব্বত, নেপাল, চায়না এইরকম কোনো একটা জায়গা থেকে উনি বিলং করতেন। এবং যেহেতু উনি শিবের ঘরণী, কোনো একটা মত অনুযায়ী, মানে আমাদের দেবী পুরাণ অনুযায়ী উনি যেহেতু শিবের ঘরণী, এবং শিব যেহেতু হলাহল পান করেছিলেন, সেই কারণে ওনার শরীরেও হলাহল এসছিল থ্রু শিব। কেন না, শিবের সঙ্গে উনি সহবাস করেছেন, শিবের সঙ্গে উনি থেকেছেন, এবং শিবের যে যখন শিবের শরীরের যে হলাহল সেটাও উনি গ্রহণ করেছেন তার ব্যথা কমাতে, তার কষ্ট কমাতে। তো এটা জেনারেলি আমাদের সংসারেও হয়ে থাকে যে মা বাবা দুজনে মিলেই কিন্তু কষ্টটা শেয়ার করে যাতে সন্তানদের কোনো কষ্ট না হয়। তো দ্য স্টোরি ইজ সেম হিয়ার অ্যাগেন, যে ওনারা দুজনে মিলে কিন্তু আমাদের কষ্ট কমানোর জন্য নিজেরা হলাহল পান করেছেন, এবং সেই কারণে ওনার বরণটা নীল হয়ে গেছে। 19th সেঞ্চুরিতে, 19th সেঞ্চুরিতে আমরা জানতে পারি যে ওনার গায়ের রং হলুদ। তার কারণ তারাপীঠে যদি আপনারা যান, ওখানে গিয়ে কিন্তু দেখবেন মায়ের গায়ের রং হলুদ। अब मैं आती हूँ माँ के बारे में, जो हम लोग बात कर रहे थे। तो तारा माँ जो है वो ऑब्वियसली वो एक ऐसी नारी है या ऐसी एक देवी है जो तंत्र साधना के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज में है। और उनका एक चीज बहुत मानना पड़ेगा आप लोगों को कि उनका जो वर्ण है वो भी, उसका जो कारण है वो शिवजी ने जो जहर लिया था उसको उन्होंने शिवजी के साथ शेयर किया था, ताकि शिवजी की जो व्यथा है वो थोड़ी सी कम हो जाए, इसीलिए उनका वर्ण नीला है। और एक चीज वो एक्चुअली जब हम लोग रुद्रमाला पढ़ते हैं पुराण से, तो वहां पता चलता है 17वें चैप्टर में ये पता चलता है कि वशिष्ठ ऋषि ने उनकी काफी पूजा की थी, पर वो उनको कभी भी प्राप्त नहीं हुई। क्योंकि वशिष्ठ क्या थे, वशिष्ठ तो आर्यन थे,
और वो अनार्य थी। वो देवी जो है वो द्रविड़ की संपत्ति थी और इसीलिए शायद उन्होंने इतनी उपासना करने के बाद भी उनको प्राप्त नहीं किया। और उनकी 3 नाम है, एक है एक जाता, एक है उग्र तारा और है नील सरस्वती। तो ये 3 नाम आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इनके बारे में भी मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी। अच्छा, अब आ जाते हैं, जैसे मैंने बोला कि उनका जो चेहरा था या उनका जो शरीर था वो स्थूल था और वो लटकता हुआ उनका एक पेट था। तो ये सब तो है, लेकिन जब हम लोग 19th सेंचुरी में पहुंचते हैं तब पता चलता है बामा खेपा जो कि तारापीठ के साधक थे, उनकी जो माँ है वो भी तारा है लेकिन उनका वर्ण पीला है। और ये भी एक मान्यता है कि ये जो उनका पीला रंग है वो भी एक बाहरी कलर है, मतलब ऊपर से किया गया एक कलर है। अंदर में जो तारा मिलती हैं उनका रंग नीला ही है। तो ये बस उनकी साज के लिए उनकी मान लीजिए उनका एक मेकओवर किया गया था उस युग में, तो वो पीला था सो दैट लोगों को उनको देख के डर नहीं लगे या कुछ ऐसा हो कि लोग धीरे धीरे उनसे थोड़ी सी मित्रता बढ़ा लें। अच्छा, माँ का जो जुवा है, जिस तरह से काली माँ का भी जुवा निकला हुआ है, इनकी भी जुवा निकली हुई है, लेकिन माँ काली के दोनों साइड से, ऐसे लिप्स के दोनों साइड से खून निकलता है। ठीक है, काले के ऊपर से लाल रंग किया हुआ रहता है, खून निकलता है। लेकिन इनका जो है ना, इनका पूरा ये सर्कल जो हनुमान मुख बोला जाता है, ये हनुमान मुख पूरा ही लाल है। तो মা তারার কিন্তু এই জায়গাটা পুরোটা লাল এবং ওনার জিহ্বাও বেরানো কালির মতন। তার কারণ উনিও কিন্তু শিবের উপরেই দাঁড়িয়ে আছেন। অ্যাকচুয়ালি সমস্ত সংসারই কিন্তু প্রকৃতি আর পুরুষ নিয়ে, সেজন্য পুরুষের উপরেই কিন্তু প্রকৃতি। সেই কারণেই এটাকে ইজিলি বোঝানোর জন্য কিন্তু কালীর ওপরে শিবকে রাখা হয়। এই মানে শিবের ওপরে কালীকে দাঁড় করানো হয়, সরি শিবের ওপরে কালীকে দাঁড় করানো হয়। এবার চলে আসছি এই যে তারা মায়ের আরাধনা, এই তারা মায়ের আরাধনা করলে কি হয়। তারা মায়ের যারা আরাধনা করেন তারা মূলত খুব ভালো আর্টিস্ট হন। মা তারার ভক্ত যারা, তারা আইদার তারা কনস্ট্রাকশন লাইনের লোক, কারণ তারা আর্কিটেকচারাল কিছু কাজ করবেন, বা তারা কবি হবেন, কবিতা লিখবেন, বা তারা ছবি আঁকার মানুষ হবেন। এই 3 জনই কিন্তু তারার সাধক এবং এরা খুব রিচ হয়ে যায়। এই জিনিসটাতে আরো বেশি রিচনেস আসে এদের এই কাজে। তো এইটা হচ্ছে তারার গুণ, মানে তারার নিজস্ব গুণ হচ্ছে এটা, সে তার প্রতাপ দেয়। তার মানে তারা যার উপরে সন্তুষ্ট তার উপরে সূর্য সন্তুষ্ট, তার মানে তার রবি খুব ভালো থাকবে। হ্যাঁ, তার মানে তার ফেম হবে প্রচুর, তার খুব নাম ডাক ঐশ্বর্য হবে। তো সেটা আমরা অনেক তারা সাধকদের দেখেছি যে তাদের কিন্তু প্রচুর খ্যাতি। এটা আপনি আশেপাশে নিজেদের লোকেদের মধ্যেও দেখবেন যারা आशेपाशे আছে। तो जो तारा के साधक होते हैं या तारा की साधना से जो फल प्राप्त होता है, उसमें ज्यादातर देखा जाता है वही लोग हैं जो इधर कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हैं, या जो लोग प्रमोटिंग कर रहे हैं, या जिनके पास मतलब पेंटिंग करने की क्षमता है, या जिनको कविताएं लिखने का शौक है, वो लोग ज्यादातर माँ तारा के भक्त होते हैं। और इसी भक्ति के कारण उनकी इस जो कला है इसमें इनको समृद्धि मिलती है और इनका बहुत ही नाम होता है, क्योंकि इन पे सूर्य देव की भी कृपा होती है। आप मान लीजिए आपकी माँ को कोई बहुत लाइक करता है, तो आप भी तो उसको लाइक करोगे ना कि मेरी माँ का ये बंदा फैन है, तो मैं भी इनका फैन हो गया, मैं भी इनका हेल्प करूंगा, मैं भी इनके साथ रहूंगा। तो ये सब होता है। तो सिमिलरली
जब आपके ग्रह में सूर्य देव का प्रताप बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आपका फेम बढ़ेगा, आपका नाम बढ़ेगा, आपका यश बढ़ेगा और लोग आपको पहचानने लगेंगे। अब आते हैं बुद्धिस्ट तारा पे। यहाँ पे भी बुद्धिस्ट तारा को भी एक तांत्रिक मत ही दिया गया है। यहाँ पे भी उनको तंत्र के लिए ही माना जाता है और ताओ जो इन्फ्लुएंस है वहां से भी हमको पता चलता है कि मानसरोवर लेक और राक्षस ताल, इन दोनों के बीच की कोई पोजीशन है जहां देवी तारा का वास था। ये उनका ज्योग्राफिकल प्रेजेंस मैं बता रही हूं। और ये जो है ये मेनली एक ऐसी नारी है जो आइदर सेंट्रल एशिया और नेपाल से ही स्थित है, जो कि हम लोगों के हिंदू धर्म में भी मिलता है इनका। तो और बुद्धिस्ट तारा का भी यही एक ये है कि जो लोग बुद्धिस्ट तारा के उपासक होते हैं उनकी जिंदगी में लाइट्स की कभी कमी नहीं होती। लाइट्स इन द सेंस प्रकाश की कमी नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगेन उनसे सूर्य का एक लिंक हो जाता है और उनका जो प्रताप है वो बढ़ जाता है। दैट इज हाउ दिस तारा इज डिपिक्टेड। एंड तारा अगर हम लोग वैसे भी सोचें बांग्ला या हिंदी में, तारा मतलब स्टार। एनी स्टार इन द गैलेक्सी जिसका पावर बहुत ज्यादा होगा उससे बाकी जो छोटे तारे होंगे वो रोशनी ले सकते हैं। तो मे बी देयर इज अ वेरी बिग स्टार इन द गैलेक्सी फ्रॉम विच द सन गेट्स इट्स एनर्जी। दैट इज हाउ यू कैन इवन साइंटिफिकली डिनोट इट। अब आते हैं कालिका पुराण के हिसाब से, जो कि 61st, 74th और 80th चैप्टर्स में मिलता है। कालिका पुराण के हिसाब से वो एक ऐसी नारी है जो वैसे तो स्वभाव से बहुत शांत है, लेकिन अगर उनके रोष को बढ़ा दिया गया तो वो কাপালিক बन जाती हैं। তো আমরা এতক্ষণ শুনছিলাম যে মানসরোবর লেক আর রাক্ষসতালের মাঝখানে মা তারার অস্তিত্ব পাওয়া গেছে বলে বুদ্ধিস্টরা ক্লেম করে এবং সেই জন্য এই দুটো জায়গা কিন্তু নির্বিশেষে হিন্দু বা বৌদ্ধ দুই ধর্মের মানুষের কাছেই খুব গ্রহণযোগ্যতা রাখে, কারণ ওখানে শিব শক্তির সমন্বয়। তার থেকেও যেটা বড় জিনিস, মনু ঋষি কালিন্দীর তীরে, কালিন্দী মানে যমুনার তীরে কিন্তু এই মা তারার বহু দিন ধরে উপাসনা করে তা उनके संतुष्ट করেছিলেন। तो एक चीज और हम लोगों को सुनने को मिलता है कि मनु ऋषि जो थे उन्होंने कालिंदी के माने तट पर, कालिंदी मतलब यमुना, क्यों कालिंदी? बिकॉज उनका रंग काला है। जो यमुना नदी है उसका रंग काला है, इसीलिए वो कालिंदी भी कही जाती हैं। तो उनके तट पर मनु ऋषि बैठ के या जो योग करते थे, जो साधना करते थे, उनसे उनको तारा की प्राप्ति हुई थी। और इसीलिए मनु ऋषि की जो ख्याति है वो आज भी विद्यमान है। वो एक ऐसे पुरुष थे जो कि समूचे पृथ्वी का जब विनाश हुआ था तो वो बच गए थे। तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो तारा के साधक थे। तो ये उनकी तांत्रिक गुण है। और इसके बाद हम लोग आते हैं कि जब हम लोग कालिका पुराण पढ़ते हैं तो कालिका पुराण में जैसे देवी पुराण है तो वैसे ही कालिका पुराण है। और कालिका को देवी से थोड़ा सा अलग समझा गया है क्योंकि ये तंत्र पुराण है। तो उस तंत्र पुराण में जब हम लोग पढ़ते हैं तो 61वां, 74th एंड 80th जो चैप्टर्स हैं उनसे हमें उनके अस्तित्व के बारे में पता चलता है। और पता चलता है कि वो एक बहुत ही प्रतापी नारी थी, जिनका तो वैसे स्वभाव शांत था, लेकिन अगर उनको रोष आ जाता तो वो निर्भया बन जाती। इसीलिए कालिका का एक नाम निर्भया भी है, तारा माँ का एक नाम निर्भया भी है।
तो जो कि सिर्फ दूसरों को अभय प्रदान नहीं करती हैं, बल्कि खुद की रक्षा के लिए भी वो तत्पर रहती हैं। अब मैं आती हूं, ये खुद की रक्षा क्यों? तो तारा को तंत्र के हिसाब से माना जाता है कि वो एक ऐसी देवी हैं जिनका सेक्सुअल पावर भी बहुत हाई है। ये मुझे पता नहीं कि अगर मैं फेसबुक में बोल रही हूं ये अनपार्लियामेंट्री है या नहीं, बट तारा की जो सेक्सुअल पावर है वो बाकी देवियों से काफी ऊपर है। एंड वो अपने इस सेक्सुअल पावर के द्वारा ही, जबकि उनका स्थूल शरीर है, उनकी जो ब्रेस्ट है और जो उनका पेट है वो लटकता हुआ है, फिर भी इसी शरीर से वो शिव को आकर्षित करती हैं और शिव इसी शरीर के पीछे भागते भी हैं। और इनसे वो इन्फ्लुएंस्ड होके इनसे ही उनका सेक्सुअल का जो रिलेशन है वो सबसे ज्यादा है। किससे? तारा से। और एक मजेदार बात और है तारा की जिंदगी में, जो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि उन दोनों में, शिव और शक्ति में और शिव और तारा में जो रिलेशन है। तो जब भी माँ को शिव को इन्फ्लुएंस करना होता था फिजिकली, तो वो तारा रूप लेती थी, तो शिव इन्फ्लुएंस्ड होते थे। और आपको एक चीज और बताऊं कि ये जो रूप है, ये जो माँ का तारा रूप है, इससे उन्होंने बहुत से डेमन्स को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, सो दैट शी कैन ब्रिंग देम टू अ प्लेटफॉर्म एंड टीच देम अ लेसन। तो जब भी हम लोग सोचते हैं ना या सुनते हैं कि कहीं पे रेप हुआ है, कहीं पे कुछ हुआ है, किसी औरत के साथ कुछ गलत हुआ है, उस समय एक्चुअली वो औरत जो होती हैं, तो उनको अगर अपने को वहां से प्रोटेक्ट करना है और अगर उनको निर्भया बनना है, उस समय उनको तारा जाप करना चाहिए। या आपको लग रहा है कि कहीं पे कुछ गलत होने वाला है, ये कोई भी पुरुष आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है जिसको आप आकर्षित नहीं करना चाहती, और वो उनके तरफ से आपके पास नेगेटिव सिग्नल्स आ रहे हैं, तुरंत तारा जाप शुरू कर दीजिए और देखिए उसका इन्फ्लुएंस, वो बंदा आपसे छिटक के दूर चला जाएगा, आपसे डरने लगेगा, भयभीत होगा और वो आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और आप अपनी रक्षा बड़े आसानी से करके निकल जाएंगी। और जिससे आपको प्यार है, जिससे आपको मोह है, जिससे आपको लगता है कि ये बंदा मेरे लिए एकदम परफेक्ट है, तो उनके सामने आप अगर तारा जाप करती हैं तो उसका इन्फ्लुएंस बिल्कुल अलग होता है। और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप तारा का जाप करती हैं तो सबसे बड़ा जो चीज है वो है आपका मुखमंडल, उसमें एक तेज आ जाएगा, वो हमेशा चमकता हुआ लोगों को नजर आएगा। मतलब उसमें कभी भी कोई भी ग्लानी नजर नहीं आएगी। भले आप अंदर से बीमार हैं, आपको देख के कोई नहीं समझ पाएगा कि आप में कोई बीमारी है। आप अपने ही मतलब अपने भीतर की जो रोशनी है उससे हमेशा आपके चेहरे पे, मुखमंडल पे वो रोशनी बनी रहेगी। तो तारा जाप एक बहुत ही मजेदार जाप है और एक ऐसा जाप है जिससे कि आप अपने चाहने वालों को अपने पास, और जिनसे आपको घृणा है या जिनसे आपको लगता है कि आपसे कुछ गलत वो इशारा कर रहे हैं या आपसे कोई भी गलत चीज करने की चेष्टा कर रहे हैं, उनको आप चुटकियों में हटा सकते हैं वहां से। मतलब और ये 28 बार जाप करने से ही हो जाएगा, इसका 108 जाप करने का भी जरूरत नहीं है। और तारा जाप, तारा का जो बीज है, ये बहुत इन्फ्लुएंशियल है लेडीज के लिए, क्योंकि अगर आप तारा का जाप दिन में एक भी बार करती हैं तो आपको किसी फेशियल की जरूरत नहीं है। तो सोचिए फेशियल में कितना पैसा आप लोग खर्च करते हैं, बाल संवारने में कितना पैसा खर्च करते हैं, और वो एक चुटकी में हो सकता है 28 बार तारा का जाप से। तो इनकी ये जो तांत्रिक लेगेसी है, इसको हम लोग कैरी कर सकते हैं कि इस माध्यम से लेडीज अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज कर सकती हैं और अपनी सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, इन्फ्लुएंशियल बनाने के लिए अपने आप को यूज कर सकती हैं। और ये जाप भी बहुत बहुत छोटा सा जाप है और बहुत इजी जाप है।
तो जो भी इसको करना चाहता है वो इधर मैं अभी तो बताऊंगी ही, और अगर किसी को कोई और एक्स्ट्रा नोट्स लेना है तो वो लोग मुझे फोन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि तारा का क्या क्या जाप है जिससे कि आप अपने आप को बहुत इन्फ्लुएंशियल बना सकते हैं। और ये जो तारा का जो बीज मंत्र है, ये अगर जो लोग कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हैं, जो लोग अपना बिजनेस माने शुक्र से रिलेटेड और सूर्य से रिलेटेड बिजनेसेस में हैं, वो लोग अगर जाप करते हैं इसका, जैसे कि मैंने भी थोड़ी देर पहले भी बोला, और जो लोग अपनी भविष्य को लिटरेरी माने जगत में अपना नाम कमाना चाहते हैं, जो लिख के अपना कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत इन्फ्लुएंशियल है। और जाप एक ही है, ऐसा नहीं है कि जाप अलग अलग है सबके लिए, जाप एक ही है लेकिन उसका इफेक्ट अलग अलग है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज है, इसको करके देखिए, जरूर मजा आएगा। मैं जाप आपको लास्ट में बताऊंगी, और उससे पहले बताती हूं कि इनको अगर आपको खोजना है तो आप कहाँ खोजेंगी तारा माँ को। तारा माँ को अगर आपको खोजना है, मतलब आप साधना में लीन होना चाहते हैं तारा के लिए, तो आपको जंगलों में उन्हें खोजना चाहिए। अगर आप किसी भी जंगल में बैठ के माँ तारा का जाप कर रही हैं तो आपको उसका जरूर फल मिलेगा, क्योंकि वो जंगल में ही भटकती रहती हैं। उनको माना जाता है कि वो डकैतों की माँ है, ডাকাত কালী উনি। তো আমরা যখন তারার বিষয়ে পড়ি, তারা খুব একটা ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ক্যারেক্টার, আর তারার জাপ করা মাত্রই মানুষের জীবনে অনেক রকম পরিবর্তন হয়। এই যে যখন আমরা রেপ কেসেস গুলো শুনি, তো রেপ কেস আটকানো যেতে পারে তারার জাপে। যে মহিলার কাছে এই তারার জাপ আছে তার কাছে এমন কোনো পুরুষ এগিয়ে আসতে পারবে না যাকে সে পছন্দ করে না, এবং এমন কোন পুরুষ যাকে সে পছন্দ করে এই তারার জাপে কিন্তু সেই পুরুষ তার কাছে আজীবন বাঁধা থাকতে পারে। 2 3 নম্বর, এই তারার জাপ করলে যেটা সব থেকে মজার জিনিস, পুরুষ ধরা পড়লো না পড়লো কোনো কিছু যায় আসে না, হ্যাঁ, যেটা সব থেকে মেন জিনিস, এই তারার জাপ করলে স্কিন ভালো থাকে, তারার জাপ করলে শরীরে একটা গ্লো থাকে, একটা অরা থাকে। অ্যান্ড সেটা আমার মনে হয় সবাই চাইবে যে আমার শরীরের অরাটা চতুর্দিকে পৌঁছে যাক, আমি যেখানে ঢুকবো সেই জায়গাটা আলোকিত হবে। এটা বোধহয় আমরা প্রত্যেকেই চাই। তার কারণ এখানে শুধু তারার আলোয় আলোকিত আপনি হচ্ছেন না, এখানে সূর্য দেবতাও পেছন থেকে আর একটা সেকেন্ড আলো দিচ্ছে আপনাকে, কারণ আপনি তারার উপাসক। তো সেই জন্য এই জাপটা আমি আপনাদের বলে দেব, এটা একটা মানে ড্যাম গুড সিক্রেট টু কিপ ইউর স্কিনস গ্লোয়িং। কোনো বিউটি পার্লারে যেতে হবে না, হেয়ার ট্রিটমেন্ট করাতে হবে না, স্পা করাতে হবে না, কিচ্ছু লাগবে না, অ্যান্ড ইউ ক্যান লুক অ্যাবসলিউটলি গ্লোয়িং, ডাশিং। তো এই তারার জাপের বিষয়ে আমি বলবো, তার আগে বলি এই যে তান্ত্রিক লিগেসি, এটা কিন্তু সব থেকে ভালো আমরা মহিলারা ক্যারি করতে পারি। হ্যাঁ, তার কারণ মহিলাদের যে জাপ করার যে ক্ষমতা সেটা কিন্তু পুরুষদের চেয়ে বেশি। এবং আমি আজকেই একটা জায়গায় শুনছিলাম ফেসবুকে, এগুলো খুব মানে আমি জানি না, মানে এগুলো যারা প্রচার করছে বা প্রসার করছে এগুলো কেন করছে, যে কোনো বেশ্যা, কোনো এমন মহিলা যে তার হাজবেন্ডের সঙ্গে থাকে না, বা কোনো এমন মহিলা যে বিধবা, সে কোনোদিন এইসব মানে নবরাত্রি করা উচিত না। আমি তো বলবো প্রত্যেকের করা উচিত, যদি তোমার মন চায়, যেটা মন চায় সেটা করা উচিত। কারণ ঈশ্বর কারোর একার সম্পত্তি নয়, ঈশ্বর সবার, মা সবার। মা কোনোদিন নিজের সন্তানদের মধ্যে ভেদাভেদ করেন না। আর সব থেকে বড় কথা, বেশ্যা যদি খারাপই হবে, তারা তো সমাজ ব্যবস্থার ব্যালেন্সটাকে মেনটেন করার জন্য তারা বেশ্যা হয়েছে, নইলে আরো রেপ কেসেস বেড়ে যেত, নইলে আরো সমাজ ব্যবস্থাটা আরো মানে কুণ্ঠিত হয়ে আসতো, আমরা মেয়েরা কেউ রাস্তায় বেরোতে পারতাম না। এবং তারা কিন্তু সমাজের এই দায়ভারটা নিয়েছে, সেই জন্য তাদের কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ। সেই কারণেই মায়ের পুজো তাদের জায়গার মাটি ছাড়া হয় না। वैश्या के घर की मिट्टी अगर ना हो तो माँ की पूजा नहीं होती। इसलिए ये सब प्रचार बंद कर दीजिए
कि वैश्या एक खराब औरत है। जी नहीं, वो आपके ही समाज की बैलेंस को मेंटेन कर रही हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो कितने ऐसे पुरुष होते जो दिन दहाड़े लोगों का रेप करते। उसको रोक रही है वो वैश्या, अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपने मन के ऊपर वो लोग वो बोझ ले रही हैं। तो किसी को गलत कहने से पहले खुद को देखिए कि आप खुद क्या हैं। आप अगर किसी और को गलत बोलते हैं मतलब आपके अंदर में कुछ गलती है, आपके अंदर कुछ खराब है, उसी खराब का प्रकाश मिल रहा है, उसी खराब का आप इन्फ्लुएंस लोगों पे छोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो अंदर की सफाई है ना, आत्मा की सफाई, दिल की सफाई, वो चालू कर दीजिए। अच्छा, तो आते हैं अब तंत्रा और तारा की तंत्रा पे। एक ऐसी एनर्जी प्रोवाइडर, एक ऐसा स्रोत जो कभी भी न खत्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि सूर्य का स्रोत कभी खत्म नहीं होगा, तो तारा उनसे भी बड़ी है, उनका स्रोत कैसे खत्म होगा। और इनका जो इन्फ्लुएंस है सबसे ज्यादा है चाइना में और नेपाल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तंत्र की जो ये विद्या है, ये वो लोग यूज करते हैं किस चीज के लिए? वो ये लोग यूज करते हैं ताकि अपने आप को ये लोग यंग रख सकें। अपने उनका जो लाइफस्टाइल है बहुत टफ लाइफस्टाइल है, इसलिए वो लोग अपने आप को यंग रखने के लिए तारा तंत्र का यूज करते हैं। तारा एक ऐसा एम्बॉडीमेंट है जो सेक्सुअलिटी का भी एक निदर्शन है हम लोगों के लिए, और स्पिरिचुअलिटी का भी। तो तारा এমন একটি মহিলা বা এমন একটি দেবী যাকে যে এম্বডিমেন্ট অফ সেক্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ স্পিরিচুয়ালিটি। তো এরকম একজন নারী এতটা ইনফ্লুয়েন্সিয়াল, এতটা নারী মানে নারীর ওপরে দেবী যে তাকে স্বয়ং শিবও কিন্তু এড়িয়ে যেতে পারেন না। এবার বলি তারার বীজ মন্ত্র। তারার বীজ মন্ত্র হলো হিম শ্রীম হুম ফট হুম আয়ম। তো যারা যারা আজকে এই বীজ মন্ত্রটা শুনলেন, এটাকে প্লিজ, যদি কেউ কেউ এটার অ্যাপ্লিকেশনস গুলো ঠিকঠাক ভাবে করতে চান, কোনো খারাপ কাজের জন্য নয়, ভালোর জন্য, নিজের ভালোর জন্য, সমাজের ভালোর জন্য, নিজের রূপ চর্চার জন্য ডেফিনেটলি করুন, এটা খুব কাজে দেবে। আর লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট একটা গল্প বলি। যে তারার রং বলেছিলাম নীল, তার কারণ উনি গ্রহণ করেছিলেন শিবের বিষ। এবার বলি তারার কিন্তু গায়ের রং আগে ওই গমের মতনই ছিল, মানে তারা তো নয়, সে দুর্গা নিজেই, সে তারা রূপ নিয়েছিল। এবং তারা রূপ নিয়ে যখন সে দেখলো যে শিব হলাহল পান করেছেন এবং তাতে ওনার কষ্ট হচ্ছে, তখন উনি যাতে ওই কষ্টকে দমন করতে পারেন, তারা রূপ নিয়ে সে দৌড়ে শিবের কাছে যায়। এবং আমাদের মাতৃরূপে আমরা সবসময় একটু গোলগাল মহিলাই মোটামুটি পছন্দ করে থাকি, তাই না? একটু মনে হয় যে মা মা ভাব আছে, বেশ একটা স্থূল শরীর। তো সেই রকম একটা শরীর নিয়ে সে দৌড়ে শিবের কাছে যায় এবং তাকে নিজের বক্ষ থেকে, স্তন থেকে সে দুধ পান করায়। এবার যখন সে দুধ পান করছিল, শিব তো তখন অচৈতন্য হয়ে পড়ছে এবং দুধ পান করছে, সেই সময়ে শিবের যে কেনাইন টিথ, মানে এই যে এই টিথটা, এটার একটা প্রেশার পড়ে মায়ের নিপলের ওপরে। আপনারা দেখবেন গরুর বাট, ইভেন কুকুরের যে মানে ল্যাকটেটিং যে অর্গানটা, যে কোনো জীবের ল্যাকটেটিং অর্গান কিন্তু তার শরীরের রঙেরই হয় বা তার থেকে একটু লাইটার শেডের হয়। কিন্তু শিবের যে দাঁতটা সেটা গিয়ে পড়ে মায়ের ওই নিপলের ওপরে, এবং নিপলের ওপরে কামড় পড়াতে কি হয়, ওখানে কিন্তু যে বিষটা ছিল সেটা ঢুকে যায় মায়ের। এইখান থেকেই কিন্তু এই বিষটা ঢোকা শুরু। এবং সেটা একটা কারণ যে প্রতিটি মহিলার শরীরের রঙের চাইতে তার যে নিপলের কালার সেটা কিন্তু ডার্কার, সেটা কিন্তু ব্ল্যাক হোক বা মারুনিশ হোক বা যাই হোক না কেন, সেটা ডার্কার বিকজ অফ দ্যাট ইনফ্লুয়েন্স
এটা কিন্তু স্কন্দ পুরাণে আছে, এবং যারা যারা এটাকে রেফার করতে চান তারা কিন্তু স্কন্দ পুরাণ পড়লেই এটা জানতে পারবেন যে এইখানের এই ইনফ্লুয়েন্স থেকে প্রত্যেকটি নারীর কিন্তু শরীরের এই জায়গাটির একটি পরিবর্তন হয়েছে। তো জানি না সত্যি মিথ্যা জানি না, বাট যেহেতু এটা আমি পড়েছি বা আমি দেখেছি, মানে আমি পড়েছি বা উপলব্ধি করেছি, সেই কারণে আমি এটা শেয়ার করলাম। এবার রেস্ট ইজ আপ টু ইউ, আপনারা এটা কিভাবে নিচ্ছেন আমার জানা নেই, বাট হ্যাঁ নিশ্চয়ই তারার ইনফ্লুয়েন্স কিন্তু বেশ একটা অন্যরকম আমেজ ক্রিয়েট করে, এবং সেই আমেজের জন্যই কিন্তু আমার মনে হলো যে এই সেকেন্ড এপিসোডটাতে তারার গল্পটা বলে হয়তো কিছু মানুষের কাছে এটার গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না, সেটা আমি এক্সপেক্ট করেই নিচ্ছি। তার কারণ গল্পটা একটু অন্যরকম, তার মধ্যে একটু সেক্সুয়াল টাচ আছে, বাট আমি আপনাদের যে গল্পটা শোনালাম সেটা কিন্তু শুধু গল্প নয়, সেটার প্রমাণ আমাদের দেবী পুরাণ। তো যাদের ভালো লাগলো তারা ডেফিনেটলি এটাকে লাইক করবেন আর কমেন্ট করবেন। অবশ্যই খুশি হব যদি আপনারা এটাকে শেয়ার করেন। तो हम माँ के बारे में एक आखिरी फैक्ट आपको बताते हैं तारा के बारे में। तो जब शिवजी ने हलाहल पान किया और वो बहुत विचलित हो रहे थे, इस हलाहल से उनको बहुत कष्ट हो रहा था, तो माँ तारा रूप में आती हैं और वो एक मातृ स्नेह से अपने हस्बैंड को, शिवजी को अपने वक्ष में धारण करती हैं और उनको वो वहां पे दूध पिलाती हैं अपने वक्ष से। और जब वो दूध पी रहे थे तो उनका जो शिवजी का जो कनाइन टीथ था वो किसी तरह से माँ के निपल को दबा देता है, और जैसे ही दबा देता है तो उसमें वो विष का प्रसार होने लगता है। इसीलिए माँ के शरीर में धीरे 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 वो नीला वर्ण आ जाता है और उनका जो निपल है वो काला पड़ जाता है, क्योंकि वहीं से तो सब घुस रहा है ना, उस जगह पे इन्फ्लुएंस ज्यादा था, तो वो इसलिए वो काला पड़ जाता है। तो एक मान्यता ये भी है कि बाकी जितने भी जीव हैं उनका जो लैक्टेटिंग ऑर्गन है उसका कलर उनके शरीर के कलर का या उससे हल्का होता है, बट एकमात्र इंसान है जिनका जो लैक्टेटिंग ऑर्गन है उसका कलर इज मच 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 डीपर देन दी स्किन कलर। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो आज की कहानी तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो बोलिएगा, और वो भी कमेंट्स में बोल सकते हैं, और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि शेयर करने से ये कहानियां बहुतों के पास पहुंच जाएगी, और ये तो हमारी अपनी गाथा है, हमारी भारत भूमि की गाथा है। तो जितना जितना आप सुनाते जाओगे, जितना जितना आप बांटते जाओगे, उतना उतना प्रेम पाते जाओगे, उतना उतना प्यार पाते जाओगे। और जरूर आज के एपिसोड में तो जरूर याद रखिएगा तारा का इन्फ्लुएंस, क्योंकि ऐसा इन्फ्लुएंस तो शायद ही और कहीं मिले। तो आज मैं और समय ना लेते हुए आप सबसे अलविदा कहूंगी। कल मिलूंगी फिर से आप सभी से, क्योंकि कल है आप लोगों के लिए मेरा तीसरा निवेदन, और चूंकि मैं आपको एक सीरीज में कहानी सुना रही हूँ उसका भी कारण है क्योंकि अभी नवरात्र चल रहा है। तो नवरात्र में जनरली लोग माँ का शांत रूप का ही वर्णना करते हैं, लेकिन मैंने चुना है तांत्रिक रूप को, और मैं तांत्रिक रूप का तीसरा जो एपिसोड है वो कल प्रसारित करूंगी, और उसमें मैं आपको सुनाऊंगी षोडशी या त्रिपुरा सुंदरी के बारे में। जो त्रिपुर सुंदरी हैं, जिनका सौंदर्य तीनों लोकों में माना जाता है, ऐसी एक नारी की कहानी मेरी जुबानी। मैं अदिति आप सबके लिए ढेर सारा प्यार लिए फिर मिलूंगी आपसे कल ठीक 2 बजे। तो কালকে আবার দেখা হচ্ছে 2টোর সময়, আর কালকের গল্প হলো ষোডশিনী কিংবা ত্রিপুরা সুন্দরী। এই ত্রিপুরা সুন্দরীর গল্প বলবো যিনি 3 ভুবনের অধিষ্ঠাত্রী, এবং 3 জায়গাতেই তার একই রকম ইনফ্লুয়েন্স, তার সৌন্দর্যের ছটায় কিভাবে 3টে লোক আলোকিত হয়ে আছে তার গল্প। এবং উনিও কিন্তু একটি তান্ত্রিক দেবী যার ইনফ্লুয়েন্স মা দুর্গার থেকে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আনন্দে থাকবেন, প্রচুর ভালোবাসা, প্রচুর গল্প
আর প্রচুর নতুন নতুন তথ্য নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আবার এসে দেখা করব কাল ঠিক দুপুর 2টায়। আমি অদিতি। টাটা।